Yes, hello everyone, welcome on Europedia platform. I hope you all are fine, preparing well. So guys, last class we have discussed about combustion and knocking in SI engine. Today we are going to discuss about stages of combustion and abnormal combustion, which is known as knocking in CI engine. Okay, so guys, before going to study about the knocking in CI engine, we need to understand the normal combustion, how the normal combustion takes place in CI engine. Okay, so guys, let's start with this particular topic, stages of combustion and knocking in CI engine. You know guys, combustion is nothing but a very complex chemical reaction, okay, in which a hydrocarbon, means the hydrogen and carbon which are there in the fuel, those hydrogen and carbon, they combine with oxygen, liberates huge amount of energy, and utilizing that huge amount of energy, high temperature, high pressure gases, we get the power output. Okay, so combustion is same, similar kind of combustion is taking place, but the mechanism of combustion which takes place in CI engine is different as compared to SI engine. In SI engine, you know, the petrol is having comparatively lower, very higher self ignition temperature as compared to diesel. Diesel self ignition temperature is lesser as compared to petrol. So in petrol, some kind of external source agency is required to initiate the combustion. That is the reason we use spark plug to initiate the combustion in petrol engine. Okay, and at the same time, you know guys, in petrol engine we cannot go with very high compression ratio. So by compressing a charge, we cannot get that kind of high temperature. Okay, because that is going to result in auto ignition, knocking in SI engine. Okay, so we cannot go with high compression ratio, and yes, we need to supply some spark to initiate the combustion. Whereas in diesel engine, the diesel self ignition temperature is lesser, and we are not using any external source agency to initiate the combustion. Rather, we are compressing the air only. In the suction stroke, the intake of air only takes place, and during the compression stroke we compress the air to a very high temperature pressure. Why? Because the compression ratio is much higher in diesel engine. The minimum compression ratio in diesel engine is in the range of 12. If you will go lesser than that, you will not be able to get that much high temperature pressure to initiate the combustion process. That's why minimum compression ratio in diesel engine is this. Usually we keep compression ratio in the range of 16 to 20. So if I will write a range, the compression ratio in the diesel engine, CI engine are in this range 12 to 22. 12 is minimum to initiate the combustion. 22 is maximum, is limited just due to what kind of mechanical factors. Because if you are going with very high compression ratio, then the pressure which is going to obtain in the engine cylinder at the end of the combustion process will be much higher. And to sustain, to bear that pressure, we need to make engine much more robust, strong. So the weight of engine starts increasing if you will go with very high compression ratio. And yes, that results in some kind of leakage also. So you need to make a very good seal. So there are some other losses will be there if you are going with very high compression ratio. That's why due to mechanical factor, the compression ratio is limited in diesel engine, not due to knocking. In SI engine, the compression ratio is limited due to knocking. If you will go with very high compression ratio, you can go high compression ratio in the range of 11-12 with very high octane fuel. Means if you are running a some kind of high speed car, modern high speed cars, super bikes, suppose you are having super bike or super car, those cars, they are actually designed with very high compression ratio. But you cannot use normal fuel in those bikes or cars. We need to use a fuel of very high quality, means a fuel which is having very high octane number in the range of 97, 98 or 100 also. Okay, good octane number means a good anti-knocking tendency, so that fuel will be able to bear that high compression ratio. But in normal cars, the compression ratio is in the range of 6 to 10, in that range only, guys. Okay, so compression ratio in petrol engine is limited due to knocking, whereas in diesel engine the compression ratio is limited due to the mechanical factor. Okay, so the mechanism of combustion is totally different in diesel. Suction takes place, air, then you compress the air, and then after compressing the air, just before the piston reaches TDC, because from BDC to TDC, that stroke we will have what, the compression stroke. So before the piston reaches TDC, we inject the fuel over that high temperature, high pressure air. So then what is going to happen? First, there will be some kind of atomization will be there, because we are going to split the fuel particle in a very fine droplet, so that there will be very good mixing of the fuel with the air. Some kind of good mixture we will get, although the mixture we are not going to get that much good in diesel engine, because in diesel engine you are injecting the fuel and at the same time the combustion is going to take place, so we are not going to get the homogeneous mixture. That's why the combustion in diesel engine is heterogeneous.
but we will try to automize the fuel. Okay, so we are going to inject the fuel at a very high pressure guys. Diesel engine में हम बहुत high pressure पे क्या करने वाले हैं, fuel को inject करने वाले हैं, so that there will be very good automation. Mixing will be there, good turbulence we are going to produce, so that each and every particle of the fuel will get sufficient air. ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या करने वाले हैं बच्चों, जब मिक्सिंग हो जाएगा देन द फ्यूल बाय टेकिंग हीट फ्रॉम द एयर इट इज गोइंग टू रीच टू सम काइंड ऑफ सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर एंड देन इट इज गोइंग टू ऑटो इग्नाइट. So if the fuel is auto igniting in diesel engine, that is normal combustion guys. But if it is not auto igniting, suppose you injected and it is accumulating, because it is taking suppose much time to auto ignite, so you are injecting continuously much and much fuel you are injecting, but the fuel is not combusting. So suppose there is a huge fuel you injected and then suddenly that huge fuel is going to what, combust. Because when you are injecting the fuel, suppose initially it is not combusting, but after some time by taking some more heat from the engine cylinder, the air which you are having, it is going to combust. Okay, so but at that moment there will be huge fuel inside the combustion chamber. So when that huge amount of fuel is going to combust, suddenly there will be very rapid pressure rise, and that is known as what, knocking in CI engine. Okay, so knocking in SI and knocking in CI is different. But suppose in diesel engine, if you injecting the fuel and it is combusting, auto ignition is taking place and you are getting the power stroke, that is normal. But if you are injecting and it is not auto igniting, that is abnormal combustion in the diesel engine. So guys, combustion phenomena, the phenomena of knocking is totally different. So the factors which actually increase the knocking tendency in petrol engine, they are going to decrease the knocking tendency here in the diesel engine. So it's a very different phenomena, understanding you need to have, so that you will be able to answer questions related to knocking in CI engine. So guys, let me start. I think these things are very much clear. Let me move to the next slide. Combustion in CI engine, there are some important points you need to understand. First point, in CI engine, the heterogeneous combustion takes place. Okay, because when you are injecting the fuel, so some kind of automation is there. We are splitting the fuel particle in very fine droplet. उसके बाद क्या होगा, the fuel particle they are going to mix with the air, so they are going to take the latent heat and they are going to vaporize हो जाएंगे, because liquid, we are injecting the liquid only, so liquid by taking heat from the air, it is going to vaporize. After vaporize, it is going to mix with the air, so we will have a mixture of air fuel, and then it is going to auto ignite. Okay, so that is what normal combustion. But if it is taking much time to auto ignite, that is abnormal combustion in the CI engine. So normally in CI engine, heterogeneous combustion takes place. Okay, and that is the reason in diesel engine we don't get instant acceleration, we don't get very instant power. Okay, so if you are driving a diesel vehicle, you will not be able to get a very good pickup as compared to the pickup which you can get in the petrol car. Okay, because in petrol we are having homogeneous combustion, in diesel engine we are having heterogeneous combustion. देखो और क्या पॉइंट है, एक डीजल में, पेट्रोल में अपने को रिक्वायरमेंट होता है टर्बुलेंस का. In petrol engine, turbulence is required, so that more is the turbulence, more will be the flame speed and less will be the knocking tendency. But in diesel engine guys, in petrol engine, carburetor is providing us the homogeneous mixture. Through carburetor we are getting a air fuel mixture, and then we are supplying that air fuel mixture in the combustion chamber. Okay, but in diesel engine, at the end of the compression stroke, we are injecting the fuel. So initially it is going to automize, then it is going to vaporize, then it is going to mix. Okay, and then after that it is going to auto ignite. Okay, so all these things are taking place in the combustion chamber only. That's why you need to inject the fuel at a very high pressure in the range of this 18,000 bar. You can imagine, at a very high pressure you need to inject, so that there will be very good automation. And other than that, there will be very good swirl movement is required. What is the difference between turbulence and swirl? In petrol engine, turbulence is required, because already we are having air fuel mixture only, so that we will have a very good flame speed. We want turbulence, so we design combustion chamber keeping good turbulence in mind. But in diesel engine, we require a very systematic ordered motion of the air. Turbulence is a motion of the air, but very quick intermixing will be there. But turbulence doesn't mean a kind of systemized or ordered motion. But if you are mentioning swirl का मतलब क्या होता है? Swirl is also similar to turbulence, but what is the difference? Turbulence is a kind of random motion, but swirl is a very ordered movement of the particle, very ordered movement of the air. Why we want that very ordered movement? So that each and every fuel particle will get sufficient air. Because जब बच्चे हर particle को
एयर मिल जाएगा, हर फ्यूल पार्टिकल को एयर मिल जाएगा, देन ओनली इट इज गोइंग टू कंबस्ट. सपोज ए फ्यूल पार्टिकल इज नॉट गेटिंग सफिशिएंट एयर, तो वो क्या करेगा, इट विल बी देयर in that form, it will be somewhere in the region in the combustion chamber, but it is not going to ignite बाद में करेगा when it will get the air. Without oxygen the fuel is not going to combust, guys. So each and every particle will get sufficient air. That's why a particular systemized, a ordered motion of the air is required, and that ordered motion of the air is known as swirl. तो वाइड एयर फ्यूल रेशियो होता है बच्चों कंबशन इंजन में, सीए इंजन में भी यूज ए वेरी वाइड एयर फ्यूल रेशियो. 18:1 से लेके 80:1 तक एयर फ्यूल रेशियो क्या करता है, वेरी करता है. दैट्स वाई द कंबशन इज हेट्रोजीनियस. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, कंबशन सीए इंजन में स्टार्ट होती है व्हेन हाईली ऑटोमाइज्ड फ्यूल इंजेक्टेड ओवर द हॉट कंप्रेस्ड एयर स्वर्ल. तो जो एयर मूव कर रही है बच्चों, एयर इज नॉट स्टैटिक इन सीए इंजन, हालांकि उसमें भी चार्ज आपका स्टैटिक नहीं होता, तो एयर इज कंटिन्यूसली मूविंग. ओके, एंड ओवर दैट एयर स्वर्ल यू आर इंजेक्टिंग द, ओवर दैट हॉट एयर स्वर्ल यू आर इंजेक्टिंग द फ्यूल पार्टिकल इन ए वेरी फाइन ऑटोमाइज्ड फॉर्म, and then by taking heat from the air it is going to what, vaporize, then mix, and then finally auto ignite. So what I want to say, why actually I am mentioning these 3-4 stages like automation, then it is going to vaporize, then it is going to mix, and then finally it is going to combust. Why actually I am mentioning, guys, you know, there is a particular very important term in diesel engine that is known as delay period. Now you will be easy able to understand that term, delay period. Guys, when you are, you know, in petrol engine there is a term which is known as ignition lag. What is ignition lag? The time gap between the start of the injection and the getting the first flame front. उस टाइम के बीच को हम क्या कहते हैं, इग्निशन लैग. आपने फ्लेम फर्स्ट स्पार्क यू हैव गिवन, but you need to allow like some time fuel is going to take to actually combust after getting the spark. That time is known as what, ignition lag. Similarly in diesel engine, when you injected the fuel, first it is going to automize, then it is going to vaporize, then it is going to mix, and finally it is auto ignite. Okay, so it is going to take some time to actually begin the chemical reaction after getting injected into the combustion chamber. So that time taken by the fuel after getting injected into the combustion chamber and actually combust, that time is known as what, delay period. उसे हम क्या बोलते हैं, डिले पीरियड. एक्चुअल में तो हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल में तो बोलते हैं कि आपने फ्यूल इंजेक्ट किया, ऑटो एट द सेम टाइम इट इज गोइंग टू ऑटो इग्नाइट. ऐसा नहीं होगा बच्चों, फ्यूल इज गोइंग टू टेक सम टाइम. एंड दैट डिले पीरियड वी कैन डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स. उस डिले पीरियड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बच्चों. वन इज द फिजिकल डिले, अनदर वन इज केमिकल डिले. तो डीजल इंजन में 2 तरह का डिले होता है, फिजिकल डिले विल बी देयर, केमिकल डिले विल बी देयर. पेट्रोल में देयर इज ओनली केमिकल डिले, एंड दैट केमिकल डिले इज व्हाट, इज नथिंग बट द इग्निशन लैग. But in diesel engine, you are not getting the air fuel mixture. You are only injecting the fuel over the hot air swirl. So that's why atomization and vaporization and mixing will be there. So first, the fuel is going to attain the condition to begin the chemical reaction. Okay. So the time taken by the fuel after getting ejected into the combustion chamber and gaining the condition to begin the chemical reaction, उस time को बोलते हैं बच्चों physical delay. Okay, now suppose fuel gained the condition to begin the chemical reaction, but after gaining that condition also it is going to take some time to actually combust. Okay, that time is known as what, chemical delay. So after attaining the sufficient condition to begin the chemical reaction and actually ignite, that time gap is what known as chemical delay. और total का total delay क्या हो जाएगा, physical delay plus chemical delay is nothing but total delay period. तो डिले पीरियड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों डीजल इंजन में, बिकॉज अगर डिले पीरियड कम है, एक बात आप समझ पाओगे अभी, डिले पीरियड इफ इट इज लेसर, सो यू इंजेक्टेड द फ्यूल एंड इट इज ऑटो इग्नाइटिंग, दैट इज नॉर्मल कंबशन. ओके, बट सपोज यू इंजेक्टेड द फ्यूल, इट इज नॉट ऑटो इग्नाइटिंग, इट इज टेकिंग मच टाइम टू ऑटो इग्नाइट. मीन्स अगर फ्यूल का डिले पीरियड ज़्यादा है बच्चों, तो इट्स नोकिंग टेंडेंसी इज गोइंग टू इंक्रीज. दैट इज ओनली वन इंपॉर्टेंट पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड. डीजल इंजन में बच्चों मोर इज द डिले पीरियड, more is the knocking tendency. So all the factors which are going to increase the delay period, they are responsible for increasing knocking in CI engine, and at the same time all the factors which are going to decrease the delay period, they are going to decrease the knocking tendency in the CI engine. तो ये कंक्लूजन क्रक्स है बच्चों नोकिंग का CI में. तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सो दैट वी विल गेट मोर आइडिया. ओके, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं बच्चों. देखो अगर मैं आपको बताऊं वॉल टाइमिंग डायग्राम इन डीजल इंजन, ये क्या है आपका, दिस इज थ्रोटिकल वॉल टाइमिंग डायग्राम, जिसे हम थ्रोटिकल वॉल टाइमिंग डायग्राम बोलते हैं. तो थ्रोटिकली तो हम क्या बोलते हैं बच्चों,
व्हेन द पिस्टन स्टार्ट्स फ्रॉम टीडीसी, ये टीडीसी से बीडीसी पे आता है तो सक्शन शुरू होता है बच्चों। सक्शन किसका होगा? ओनली एयर। ओनली एयर का क्या हो जाएगा? सक्शन शुरू हो जाएगा। इनलेट वाल्व ओपन हो जाएगा टीडीसी से, और बीडीसी पे पहुंच के इनलेट वाल्व क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। देन वी आर गोइंग टू कंप्रेस द एयर ओनली। एयर ओनली को क्या करेंगे? कंप्रेस करेंगे। जैसे ही पिस्टन टीडीसी पे पहुंचेगा वी आर गोइंग टू इंजेक्ट द फ्यूल, फ्यूल इंजेक्शन। फ्यूल इंजेक्शन को क्या कर देंगे? हम शुरू कर देंगे। सो जैसे ही फ्यूल इंजेक्ट किया, एट द सेम टाइम इट इज बर्निंग। तो IS मतलब स्पार्किंग, आपका इग्निशन स्टार्ट। तो फ्यूल इंजेक्शन भी यहीं पे हो रहा है और यहीं पे आपका इग्निशन क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। देयर इज नो सच डिले पीरियड because this is what theoretical valve timing diagram. So you injected the fuel and it is auto igniting at the same time. That is not possible. Okay, it is going to take much time in real conditions. So this is only theoretical valve timing diagram. तो यहाँ पे fuel inject किया, at the same time it is combusting. Then you will have what? The power stroke. यहाँ से पावर स्ट्रोक होगा, दोनों वाल्व बंद रहेंगे। जैसे ही बीडीसी पे पहुंचेगा, आपका एग्जॉस्ट वाल्व इज गोइंग टू ओपन, देन यू विल हैव व्हाट? एग्जॉस्ट स्ट्रोक, और यहाँ पे आके आपका एग्जॉस्ट वाल्व हो जाएगा क्लोज। सो दिस इज व्हाट? दिस इज थ्योरेटिकल वाल्व टाइमिंग डायग्राम फॉर 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। ये 4 स्ट्रोक डीजल के लिए क्या है? आपका थ्योरेटिकल वाल्व टाइमिंग डायग्राम। बट एक्चुअल में क्या होगा बच्चों? तो समझते हैं इसको। बिफोर द पिस्टन रीचेज टीडीसी, मान लीजिए, चलो यहाँ से शुरू करते हैं, पहले इनलेट वाल्व से शुरू करते हैं। तो इनलेट वाल्व आपका ओपन हो जाएगा, पिस्टन टीडीसी से मूव करेगा तब इनलेट वाल्व ओपन नहीं होगा। सो बिफोर द 25 डिग्री पिस्टन रीचेज टीडीसी, इनलेट वाल्व ओपन हो गया। तो वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट। You all know guys, if you watched the earlier lecture, आपको पता होगा कि why we are opening the inlet valve before the piston reaches TDC, so that more and more sufficient air will enter. Generally डीजल में हमें excess air रखना पड़ता है बच्चों, because so that each and every particle, local combustion is taking place in the diesel engine, each and every fuel particle gets sufficient air. So that's why we are going to provide additional air into the combustion chamber. तो 25 डिग्री, क्लोज टू 25 से 30 डिग्री पहले ही हम क्या कर देते हैं? इनलेट वाल्व ओपन कर देते हैं। सो इनलेट वाल्व इज गोइंग टू ओपन हियर, यहाँ से इनलेट वाल्व ओपन हो गया। देन यू विल हैव सक्शन स्ट्रोक एंड इट इज गोइंग टू रिमेन ओपन अप टू व्हाट? द क्रैंक क्रॉसेस द 25 डिग्री व्हाट? बीडीसी। ओके, बीडीसी को आपका पिस्टन क्या कर देगा? पिस्टन पास्ड बीडीसी 25 डिग्री। तो 25 डिग्री फर्दर एंगल तक आपका एग्जॉस्ट वाल्व, इनलेट वाल्व क्या रहेगा? ओपन रहेगा। तो इनलेट वाल्व टोटल कितना ओपन है बच्चों? अगर आप देखोगे 180 प्लस 50, 230 डिग्री के आसपास आपका इनलेट वाल्व क्या है? ओपन है। देन इनलेट वाल्व क्लोजेस, यहाँ पे इनलेट वाल्व क्लोज हो जाएगा। यू विल हैव कंप्रेशन स्ट्रोक। ओके, अब देखो कंप्रेशन जब आप कर रहे हैं, इट इज नॉट लाइक दैट कि एट द टीडीसी यू विल स्टार्ट इंजेक्टिंग। नो, हम स्पार्क इंजेक्शन को थोड़ा एडवांस करके रखते हैं बच्चों। द पर्पज इज सेम। जैसे ऐसा इंजन में हम क्या करते थे? वी इनिशिएट द स्पार्क बिफोर द पिस्टन रीचेज टीडीसी। कंप्रेशन स्ट्रोक से एंड से पहले ही हम क्या कर देते थे? इंजेक्शन शुरू कर देते थे, सो दैट वी विल गेट द पीक प्रेशर क्लोज टू द टीडीसी। तो बच्चों, अगर आप इंजेक्शन को यहाँ शुरू कर रहे हो, सपोज इन द व्हेन द पिस्टन रीचेज टीडीसी यू आर इंजेक्टिंग द फ्यूल, तो क्या होगा? इट इज नॉट गोइंग टू कंबस्ट एट द सेम टाइम, सम एंगल क्रैंक इज गोइंग टू ट्रेवल। तो मान लीजिए 20-30 डिग्री जाके यहाँ पे आपका फ्यूल क्या होता है? कंबस्ट होता है। तो आपका जो पीक प्रेशर होगा, पीक टेम्परेचर होगा, दैट इज गोइंग टू रिड्यूस गाइस। सो पावर आउटपुट विल डिक्रीज। तो अगर आपने इंजेक्शन को रिटार्ड कर दिया तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों? आपकी जो है पावर क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी। ओके, एंड हेयर सपोज व्हेन यू आर गोइंग विद स्पार्क एडवांस, फ्यूल इंजेक्शन एडवांस, फ्यूल इंजेक्शन को अगर आप एडवांस कर रहे हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? पावर आउटपुट ज़्यादा मिल जाएगी। बट फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत ज़्यादा एडवांस कर दिया, तो पावर, इसको फ्यूल इंजेक्शन को एडवांस करने से क्या होता है बच्चों? व्हेन यू आर गोइंग विद फ्यूल इंजेक्शन एडवांस, क्या होगा? द पावर आउटपुट इज गोइंग टू इंक्रीज। व्हाई? बिकॉज वी विल गेट द पीक प्रेशर क्लोज टू द टीडीसी। अब देखो, आपने बहुत ज़्यादा एडवांस कर दिया। मान लीजिए यू एडवांस्ड मोर देन 20 डिग्री। जनरली हम जो एडवांस है वो 10 से 20 डिग्री, 20 डिग्री ऑप्टिमम रखते हैं बच्चों। 10 से 20 डिग्री के आसपास क्या रखते हैं हम? इंजेक्शन एडवांस। सपोज यू आर गोइंग विद 40 डिग्री एडवांस, तो क्या होगा? मीन्स you are carrying out the compression, means during the compression the air temperature pressure is not that much high. एयर का टेम्परेचर प्रेशर ज़्यादा नहीं है। एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन प्रेशर विल बी मच हाइयर ना। तो अभी कंप्रेशन एंड हुआ नहीं है और आपने उससे पहले इंजेक्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा? यू स्टार्टेड इंजेक्शन, मतलब आपने नोजल से इंजेक्शन शुरू कर दिया है, तो इंजेक्शन हो रहा है लगातार हो रहा है, तो क्या होगा? देयर विल बी एक्यूमुलेशन ऑफ द चार्ज विल टेक्स प्लेस। फ्यूल इज नॉट गोइंग टू कंबस्ट। व्हाई? बिकॉज द टेम्परेचर प्रेशर इज नॉट दैट मच हाइयर इन द कंबशन चैम्बर. So during the compression stroke, if you are going with very high degree of injection advance, तो क्या हो जाएगा? जैसे पेट्रोल इंजन में नोकिंग बढ़ जाता है, ऐसे ही डीजल में बढ़ जाएगा. तो इंजेक्शन एडवांस का कंसेप्ट तो सिमिलर सही है. इंजेक्शन एडवांस अगर बहुत ज़्यादा किया
वी आर इंटरेस्टेड इन एडवांस सो दैट वी विल गेट द पीक प्रेशर क्लोज टू TDC ताकि पावर आउटपुट बढ़ जाए. बट इफ यू आर गोइंग विद वेरी हाई इंजेक्शन एडवांस तो क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्यूल विल टेक्स प्लेस ड्यू टू द इंजेक्शन ऑफ द फ्यूल ओवर लो टेम्परेचर एयर. एंड ड्यू टू दैट एक्यूमुलेशन व्हाट विल हैपन, जब तक आप TDC तक इंजेक्ट करते रहोगे क्या होगा, नाउ देयर विल बी ह्यूज अमाउंट ऑफ ह्यूज फ्यूल इज देयर इन द कंबशन चैम्बर एंड दैट ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्यूल is going to auto ignite because now the temperature is higher, okay, at the end of the compression. But that when huge amount of fuel is going to auto ignite, combust, then there will be very rapid pressure rise. So उससे जो इंजन का जो वर्किंग है वो बहुत रफ हो जाता है एंड विद वेरी ह्यूज साउंड दैट यू नो दैट काइंड ऑफ वर्किंग वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व. उससे इंजन भी डैमेज हो सकता है, आपका पावर लॉस तो होगा ही होगा, ओके, एंड दैट इज नोन एज व्हाट, नोकिंग इन CI इंजन गाइस. एक्यूमुलेशन वी डोंट वांट, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट गो विद मच एडवांस, बट थोड़ा एडवांस रखते हैं, कितना, 10 से 20 डिग्री, ऑप्टिमम 20 डिग्री एडवांस रखते हैं. तो एडवांस किया, मान लीजिए TDC के आसपास आते आते क्या हो गया, फ्यूल बर्न करना शुरू कर दिया, तो आपको एकदम से प्रेशर मिल गया मैक्सिमम, ओके, प्रेशर मिलेगा आपको, देन यू विल हैव एक्सपेंशन स्ट्रोक, ओके, एक्सपेंशन स्ट्रोक हो जाएगा. जैसे ही एक्सपेंशन स्ट्रोक का एंड पिस्टन इज गोइंग टू रीच द BDC, उससे पहले ही आप क्या कर दोगे, at before the end of the expansion stroke only we are going to open the exhaust valve so that we will be able to utilize the high pressure of the exhaust gases, okay, and due to that high pressures they are going to come out of the exhaust valve. तो अपने को वर्क नहीं करना पड़ेगा, we need not to give much work to remove those burnt out gases out of the combustion chamber. अगर आपने इनलेट वाल्व यहाँ पे आके ओपन किया तो पिस्टन को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा बच्चों टू रिमूव दोज एग्जॉस्ट गैसेस आउट ऑफ द combustion chamber. तो हमने एग्जॉस्ट वाल्व को पहले ही ओपन कर दिया ताकि वो एग्जॉस्ट गैसेस बाहर जाएं. देन अभी एक्सपेंशन तो चल रहा है आपका, बट एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो गया है. उसके बाद क्या है, यहाँ से एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो गया मीन्स विच स्ट्रोक स्टार्ट्स, आपका एग्जॉस्ट जो लास्ट स्ट्रोक है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, वो आपका क्या हो गया, शुरू हो गया है, ओके. और एग्जॉस्ट वाल्व कब तक ओपन रहेगा, व्हेन द पिस्टन पास्ड TDC, कितना, यूजुअली 15 डिग्री. व्हाई, सो दैट वी विल बी एबल टू यूटिलाइज द इनकमिंग एयर to remove the exhaust gases, burnt out gases out of the combustion chamber. That is known as what, sequencing. तो फ्रेश चार्ज को यूटिलाइज करके, फ्रेश एयर को यूटिलाइज करके हम एग्जॉस्ट गैसेस को रिमूव कर पाएं, सो दैट लेस विल बी द चार्ज डाइल्यूशन. सो वी आर गोइंग टू यू नो कीप इट ओपन ओनली एग्जॉस्ट वाल्व व्हेन द पिस्टन पास्ड द TDC. आर यू गेटिंग गाइस? सो आई थिंक यू गोट द आइडिया अबाउट दिस एक्चुअल वाल्व टाइमिंग डायग्राम इन डीजल इंजन. अभी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और समझते हैं इसके बारे में. द पर्पज इज टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक गाइस. देखो इसको एक बार रीड करोगे यू विल गेट द आइडिया. मैं आपको एक बार पढ़ देता हूं आपके लिए. डिले पीरियड गाइस, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, ये जो डिले पीरियड होता है नॉर्मली 15 डिग्री क्रैंक एंगल के आसपास होता है. 15 डिग्री क्रैंक एंगल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन टाइम, टाइम में भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत माइक्रो सेकंड्स में आएगा ये, दिस इज इन माइक्रो सेकंड, ओके. बट अगर मैं क्रैंक एंगल की बात करूँ तो 15 डिग्री है. 15 डिग्री मतलब आपने फ्यूल इंजेक्शन शुरू किया. देखो हमने, अगर आप यहाँ देखोगे प्रीवियस डायग्राम, तो मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे हमने इंजेक्शन शुरू किया 10 डिग्री और TDC के आसपास क्या हो जाएगा, अपने को जो है कंबशन बिगिन हो जाएगा. तो कंबशन कब बिगिन होगा, इंजेक्शन के बाद. फ्यूल इज हैविंग सम डिले पीरियड, तो डिले के बाद वो क्या होगा, कंबस्ट होगा. तो वो डिले पीरियड कितना होता है, 15 डिग्री के आसपास का होता है, ओके. और उस डिले पीरियड के बाद फ्यूल आपका बर्न करना शुरू कर देगा, ओके. तो डिले पीरियड क्या होना चाहिए, शॉर्टर होना चाहिए बच्चों. डिले पीरियड डीजल इंजन में क्या होना चाहिए, शॉर्टर होना चाहिए. क्यों शॉर्टर होना चाहिए, देखो ये पॉइंट भी समझ लेते हैं. शॉर्टर क्यों होना चाहिए, बिकॉज अगर ये हाइयर है तो क्या होगा, accumulation होगा, there will be much accumulation of the charge in the combustion chamber, and due to that much accumulation the knocking is going to take place because a huge amount of charge which is actually accumulating in the diesel engine that is going to combust suddenly. Due to that there will be very rapid pressure rise, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, knocking in CI engine. So we don't want that, that's why delay period आपका क्या होना चाहिए, shorter होना चाहिए. longer delay period से rapid rise होता है प्रेशर का, टेम्परेचर का, that causes knocking, ओके. तो लॉन्ग डिले पीरियड रिजल्ट्स इन मोर फ्यूल अवेलेबल फॉर साइमल्टेनियस एक्सप्लोजन. ये एक पॉइंट ही समझना था हमें, जितना ज़्यादा डिले पीरियड है उतना ज़्यादा फ्यूल क्या होता रहेगा, एक्यूमुलेट होता रहेगा. सो देयर विल बी वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फ्यूल विल बी अवेलेबल फॉर साइमल्टेनियस कंबशन, and that when the simultaneous combustion of the huge amount of charge is going to takes place, that is knocking abnormal combustion in CI engine. But अगर डिले पीरियड कम है then that is normal combustion in the CI engine, okay. तो डिले पीरियड क्या होता है, it is a combination of what, physical delay plus chemical delay. फिजिकल डिले क्या होता है बच्चों, इट इज अ टाइम गैप बिटवीन द स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन एंड अटेनमेंट ऑफ कंडीशन टू बिगिन द केमिकल रिएक्शन. बच्चों
ये फाइल मैं आपको दे दूंगा बच्चों, यू नीड नॉट टू नोट इट डाउन एनीथिंग। पहले वाला फाइल, इसका फाइल, दोनों का यू विल गेट इन द वीडियो, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा बच्चों, आज मिल जाएगा। तो टाइम बिटवीन द स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन एंड अटेनमेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल रिएक्शन। बट आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ द कंडीशन and when the fuel is actually going to combust, that time gap is known as what, chemical delay. So time taken by the fuel to actually ignite after attaining the condition to begin the chemical reaction, that is known as what, chemical delay. And chemical delay is very much similar to ignition lag, because physical delay तो नहीं होगा वहाँ पे, because we are having carburetor is supplying us very good air fuel mixture. तो दैट एयर फ्यूल मिक्सचर इज वेरी गुड, लाइक जो भी स्टिक्योमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो उतना हम क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। सो द फ्यूल इज एट कंडीशन टू बिगिन द केमिकल रिएक्शन, बट इट इज नॉट कंबस्टिंग, तो कुछ टाइम लेगा। दैट टाइम टेकन बाय द फ्यूल इन द पेट्रोल इंजन, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज इग्निशन लैग। तो इग्निशन लैग इज वेरी सिमिलर टू द केमिकल डिले, बट देर इज सम अदर एडिशनल डिले इज ऑल्सो देयर इन द डीजल इंजन, एंड व्हाट इज दैट, फिजिकल डिले। चलिए, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा फ्यूल पे। ओके ये डिपेंड, बिकॉज फ्यूल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कैसा है, फ्यूल आपका वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है। अगर आपका बहुत अच्छा वोलेटाइल फ्यूल है तो फिजिकल डिले कम हो जाएगा, बिकॉज इजीली वो मिक्स हो जाएगा एयर के साथ, इजीली वेपराइज हो जाएगा, एंड यू विल हैव ए फ्यूल विच इज रेडी टू कंबस्ट। ओके, सो दैट डिपेंड्स ऑन द फ्यूल, कि फ्यूल का वोलेटिलिटी अच्छा है या पुअर है। वो डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर भी, कि कंबशन चेंबर में टेम्परेचर प्रेशर कैसा है। अगर हाई प्रेशर टेम्परेचर है कंबशन चेंबर में, देन फ्यूल इज ईजिली गोइंग टू व्हाट, मिक्स। हाई प्रेशर पे, यू नो हाई प्रेशर पे क्या होगा बच्चों, एट हाई प्रेशर डेंसिटी विल बी मच हाइयर। ओके, फ्यूल का जो एयर फ्यूल मिक्सचर है, सबसे बड़ी बात क्या है, हाई टेम्परेचर देयर विल वेरी गुड वेपराइजेशन ऑफ द फ्यूल इनटू द एयर। फ्यूल बहुत जल्दी वेपराइज हो जाएगा एयर के अंदर, एंड यू विल गेट ए वेरी गुड मिक्सचर। बट सपोज इफ द टेम्परेचर प्रेशर इज नॉट दैट मच हाइयर, तो swirl मूवमेंट भी अच्छा नहीं होगा, और उससे अलग अलग आपका जो फ्यूल है वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। फ्यूल विल नॉट बी एबल टू मिक्स विद द एयर, बिकॉज इट विल नॉट बी एबल टू पिक द लेटेंट हीट। ओके, एंड इफ इट इज नॉट पिकिंग द लेटेंट हीट, इट विल नॉट बी एबल टू कन्वर्ट फ्रॉम व्हाट, इनटू वेपर। तो मिक्सिंग अच्छे से नहीं होगी बच्चों, द टेम्परेचर प्रेशर इज नॉट दैट मच हाइयर इन द कंबशन चैम्बर। तो प्रेशर टेम्परेचर हाई होना चाहिए फॉर गेटिंग दी लोअर डिले पीरियड। बट SI में क्या था बच्चों, इफ हाई इज द टेम्परेचर प्रेशर, दैट इज गोइंग टू रिजल्ट इन नॉकिंग इन SI इंजन। बट डीजल में ऐसा नहीं है बच्चों, डीजल में हाई इज द प्रेशर टेम्परेचर, दैट इज गोइंग टू डिक्रीज द नॉकिंग टेंडेंसी, बिकॉज हाई प्रेशर टेम्परेचर इज गोइंग टू डिक्रीज द डिले पीरियड। ओके, तो ये पॉइंट मेरे ख्याल से आपके समझ में आया। ड्यूरिंग दिस टाइम द फ्यूल इज ऑटोमाइज्ड, ये जो फिजिकल डिले का टाइम है, फ्यूल ऑटोमाइज होता है, वेपराइज होता है, मिक्स हो जाता है एयर के अंदर, एंड इट रेज्ड इन टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यू नो गाइज, अगर फ्यूल की क्वालिटी अच्छी है तो प्रेशर टेम्परेचर बढ़ने से उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर भी कम हो जाता है बच्चों। एट हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर इज गोइंग टू डिक्रीज, और अगर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर डिक्रीज हो गया तो केमिकल डिले भी कम हो जाएगा, बिकॉज वो जल्दी से कंबस्ट हो पाएगा। बट अगर फ्यूल का सपोज द प्रेशर टेम्परेचर इज लोअर, तो उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा, हाइयर होगा, सो इट इज गोइंग टू टेक मच टाइम टू एक्चुअली कंबस्ट, तो उसका केमिकल डिले भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो केमिकल डिले भी डिपेंड करता है प्रेशर टेम्परेचर पे, बट इट मेजरली डिपेंड्स ऑन द फ्यूल ऑल्सो। तो केमिकल डिले अगर आप यहाँ देखोगे, इट डिपेंड्स ऑन द सीटेन नंबर। सीटेन जो क्वालिटी होता है, क्वालिटी ऑफ डीजल फ्यूल वी मेजर इन टर्म्स ऑफ द सीटेन नंबर। मोर इज द सीटेन नंबर, गुड इज द क्वालिटी ऑफ द डीजल फ्यूल, और लेस इज द नॉकिंग टेंडेंसी। तो सीटेन नंबर मतलब फ्यूल पे भी डिपेंड करता है, प्रेशर टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, क्या आपका केमिकल डिले, और केमिकल डिले आपका कंबशन चैम्बर की शेप पे भी डिपेंड करता है। हालांकि फिजिकल डिले भी आपका कंबशन चैम्बर की शेप पे डिजाइन करेगा। गुड इज अ गुड इफ यू डिजाइंड कंबशन चैम्बर वेरी एक्यूरेटली, ऑप्टिमाइज्ड आपने किया है, सो देयर विल बी वेरी गुड swirl. Good swirl is there will be very good vaporization, mixing of the air fuel into the air. Are you getting? तो इन सब फैक्टर्स पे क्या करता है, आपका डिले पीरियड डिपेंड करता है। तो इनिशियली द केमिकल रिएक्शन स्टार्ट स्लोली एंड देन एक्सेलरेट्स टू बिगिन द इग्निशन प्रोसेस। तो अटेनमेंट के बाद भी एकदम से केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, शुरू में केमिकल रिएक्शन बहुत स्लो होगी, एंड देन यू विल हैव रैपिड और व्हाट, द कंबशन विल स्टार्ट। सो दैट टाइम गैप इज नोन एज व्हाट, केमिकल डिले। तो बच्चों आपको इतना समझना है, फिजिकल डिले, केमिकल डिले क्या होता है। यूजुअली केमिकल डिले ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फिजिकल डिले, बट एक्चुअली इट चेंजेस, ये चेंज हो जाता है अगर आपका आपकी कंडीशंस इंजन की, ओके, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर कंडीशंस पे, सो ये क्या हो जाएगा, हाई स्पीड्स पे ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, बट इन जनरल नॉर्मली यूजुअली केमिकल डिले इज मोर देन फिजिकल डिले, और केमिकल डिले इज इक्वलेंट टू इग्निशन लैग इन केस ऑफ SI इंजन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आपके लिए बड़ा इजी होगा टू अंडरस्टैंड स्टेजेस ऑफ कंबशन इन CI इंजन।
ओके अभी ये बिल्कुल आपके लिए हलवा है, कैसे आपको समझना है बच्चों। डीजल इंजन में देर आर 4 स्टेजेस। पहला स्टेज क्या है, इग्निशन डिले। अब आपको पता चल गया है व्हाट इज डिले पीरियड, तो नाउ इट विल बी वेरी इजी। डिले इसका मतलब क्या है, इग्निशन डिले पीरियड मीन्स दिस इज द कंप्रेशन स्ट्रोक। आप यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ क्या कर रहे हैं हम, कंप्रेशन कर रहे हैं बच्चों। दिस इज अवर टीडीसी, टीडीसी से बीडीसी, ये इधर क्या है आपका बीडीसी। ओके पिस्टन आ रहा है कहाँ से, बीडीसी से, बीडीसी की तरफ से आ रहा है, कंप्रेशन हो रहा है बच्चों, compression. So here we are only showing compression and expansion stroke. Okay, तो compression and compression पे क्या होगा बच्चों, उसके 20 डिग्री पहले देखो, TDC से 20 डिग्री पहले हमने क्या कर दिया, we started the injection. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बच्चों, दिस इज पॉइंट 1, TDC से 20 डिग्री पहले हमने क्या कर दिया, we started the injection. सो यहाँ से इंजेक्शन शुरू किया, बट इंजेक्शन शुरू होने के बाद यहाँ तक फ्यूल क्या कर रहा है बच्चों, फ्यूल का क्या है, कुछ डिले पीरियड है। फ्यूल इज नॉट कंबस्टिंग एक्चुअली। ओके फ्यूल कंबस्ट नहीं कर रहा है, इट इज एक्चुअली गेनिंग द कंडीशंस टू बिगिन द केमिकल रिएक्शन एंड द टाइम गैप इज व्हाट, द इग्निशन डिले। इसमें दोनों आ जाएंगे, स्टेज 1 में फिजिकल केमिकल दोनों डिले हो जाएंगे। तो यू इंजेक्टेड द चार्ज और यहाँ से 15 डिग्री के आसपास, 15 डिग्री के आसपास इसने टाइम लिया, ताकि 5 डिग्री के आसपास आपको पहले क्या मिल जाएगा, फ्यूल कंबस्ट कर जाएगा। और जैसे ही कंबस्ट कर जाएगा, यहाँ पे आपको कंबस्ट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, रैपिड प्रेशर राइज मिलेगा बच्चों। आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, वेरी रैपिड प्रेशर राइज। ओके तो देखो यहाँ पे दिस पर्टिकुलर टाइम इज व्हाट, डिले पीरियड। और मान लीजिए फ्यूल ने कंबस्ट नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल फ्यूल कंबस्ट नहीं कर पाया, तो कौन सा कर्व फॉलो करेगा, ये जो कर्व है प्रेशर थीटा डायग्राम, कौन सा कर्व फॉलो करेगा, दिस पर्टिकुलर कर्व। यहाँ से ये सेपरेट नहीं हो पाएगा बच्चों, देयर विल बी नो फास्ट रैपिड प्रेशर राइज। होगा क्या, ये कर्व ऐसे आ जाएगी, यहाँ से यहाँ कंप्रेशन हुआ, मैक्सिमम प्रेशर पहुंचा टीडीसी के एंड पे, देन यू विल हैव एक्सपेंशन स्ट्रोक। और इस कर्व को हम क्या बोलते हैं, मोटरिंग कर्व बच्चों। इसको हम क्या बोलते हैं, मोटरिंग कर्व। मोटरिंग मतलब कि नो कंबशन बिगिंस, कंबशन बिगिन हुआ ही नहीं। ओके तो यहाँ तक डिले पीरियड था। अब जैसे ही कंबशन बिगिन होगा, तो ये जो कर्व है बच्चों, दिस कर्व इज गोइंग टू डेविएट फ्रॉम द मोटरिंग कर्व। तो व्हाई एक्चुअली आई मेंशन दिस पर्टिकुलर कर्व, तो बच्चों ये जो पॉइंट है स्टेज 1 के एंड पे, अभी तक ये कर्व कॉमन था, इस कर्व पे जैसे ही कंबशन बिगिन होगा, वी विल गेट ए वेरी रैपिड प्रेशर राइज। आपको प्रेशर राइज मिलेगा, और उस प्रेशर राइज की वजह से दिस पी थीटा कर्व इज गोइंग टू डेविएट फ्रॉम द मोटरिंग कर्व। तो दो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, पॉइंट इसको मैं ए लिख देता हूँ, इसको मैं पॉइंट बी लिख देता हूँ। तो ये जो पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी पे पी थीटा कर्व इज गोइंग टू डेविएट फ्रॉम द मोटरिंग कर्व एंड यू विल गेट ए शार्प प्रेशर राइज। बट इनिशियली जो रिएक्शन होगी वो कैसी होंगी, अनकंट्रोल्ड होंगी बच्चों। वी विल हैव ए अनकंट्रोल्ड कंबशन, बिकॉज डीजल इंजन में हेटेरोजीनियस कंबशन टेक्स प्लेस, लोकलाइज्ड कंबशन होता है बच्चों। देयर आर सो मेनी फ्लेम फ्रंट्स, एक फ्लेम फ्रंट नहीं होता। पेट्रोल इंजन में कंबशन इनिशिएट्स बाय व्हाट, द फ्लेम। सो फ्लेम से ही सिंगल फ्लेम फ्रंट होता है इन पेट्रोल इंजन, सिंगल विद द यूज ऑफ सिंगल फ्लेम फ्रंट ओनली वी आर गोइंग टू इनिशिएट द कंबशन। तो अगर एंड चार्ज तक फ्लेम फ्रंट नहीं पहुंचता है, एंड इफ दैट एंड चार्ज इज ऑटो इग्नाइटिंग बिफोर द फ्लेम फ्रंट रीचेज टू इट, दैट इज द नोकिंग इन एसआई इंजन। बट सीआई इंजन में क्या होगा, लोकल कंबशन होगी, मल्टीपल प्लेसेस पे क्या होगी, लोकल कंबशन होगी, हेटेरोजीनियस कंबशन होगी। सो वेरियस प्लेसेस पे हेटेरोजीनियस कंबशन, सो देयर आर सो मेनी फ्लेम फ्रंट्स। तो ऑटो इग्निशन इज नॉर्मल इन सीआई इंजन। मल्टीपल लोकेशंस पे जब ऑटो इग्नाइट हो रहा है फ्यूल, दैट इज नॉर्मल। बट अगर मल्टीपल लोकेशंस पे इट इज नॉट ऑटो इग्नाइटिंग, एक्यूमुलेट हो रहा है एंड देन आफ्टर एक्यूमुलेटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्जेस ऑटो इग्नाइटिंग, दैट इज अब नॉर्मल कंबशन इन द डीजल इंजन। ओके तो बच्चों यहाँ पे इनिशियली कंबशन रिएक्शन कैसा होगा, अनकंट्रोल्ड, बिकॉज रैपिड प्रेशर राइज मिलेगा अपने को। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद वी विल हैव व्हाट, समवट कंट्रोल्ड केमिकल रिएक्शन, कंट्रोल्ड आपका कंबशन हो जाएगा। ओके तो देखो जब आपका जो आपका स्टेज 2 है, स्टेज 1 क्या था आपका, डिले पीरियड, स्टेज 2 के आपका अनकंट्रोल्ड कंबशन। अनकंट्रोल्ड कंबशन जो स्टेज है ये खत्म होगा कहाँ पे, व्हेन यू विल गेट द मैक्सिमम प्रेशर। जैसे ही मैक्सिमम प्रेशर मिल जाएगा आपका स्टेज 2 खत्म हो जाएगा, देन यू विल हैव कंट्रोल्ड कंबशन। कंट्रोल्ड कंबशन इज गोइंग टू एंड, कंबशन अभी हो रहा है बट नाउ द कंबशन इज कंट्रोल्ड। कंबशन कंट्रोल जब एंड होगा, इट इज गोइंग टू एंड एट मैक्सिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर पे आपका, मैक्सिमम साइकिल टेम्परेचर पे आपका कंट्रोल्ड कंबशन एंड हो जाएगा। बट अभी तक कंबशन खत्म नहीं हुआ है, एक्सपेंशन स्टार्ट्स हो गया है, बट देयर आर सम लोकल पॉकेट्स, सम एंड्स आर देयर वेयर देयर इज सम चार्ज इज देयर, जिसको अभी तक एयर मिला ही नहीं। दैट चार्ज इज वेटिंग कि मेरे पास कुछ एयर आ जाए सो दैट आई विल बी एबल टू कंबस्ट। तो उसके बाद भी कंबशन होगा, और उस कंबशन को हम क्या बोलते हैं, आफ्टर बर्निंग।
So whatever unburned charge is there, that unburned charge is now going to get the air and it is going to combust. That is known as afterburning. So these are the 4 stages of combustion in diesel engine. पहली स्टेज डिले पीरियड, देन अनकंट्रोल्ड कंबशन, देन कंट्रोल्ड कंबशन, और तीसरा स्टेज क्या है आपका आफ्टर बर्निंग. तो ये यहाँ भी देख सकते हो, जो आपका डिले पीरियड है उसमें तो कोई कंबशन होगा ही नहीं बच्चों. जो स्टेज 2 है B2C, जो स्टेज 2 है उसमें आपका 30 to 35% हीट जो है इवॉल्व हो जाएगा, हीट लिबरेट हो जाएगा. 30 to 30% हीट आपका यहाँ पे लिबरेट हो जाएगा. मैक्सिमम जो हीट लिबरेशन है 40 to 45% वो आपका कंट्रोल्ड कंबशन में ही होने वाला है. ये आपका क्या था, अनकंट्रोल्ड कंबशन. तो अनकंट्रोल्ड में 30 to 35 लिबरेट हो रहा है एंड वी आर गोइंग टू गेट द मैक्सिमम प्रेशर, बिकॉज अभी कंप्रेशन चल रहा है बच्चों, कंप्रेशन चल रहा है, कंबशन बिगिन हो गया तो वी विल गेट द मैक्सिमम प्रेशर. उसके बाद एक्सपेंशन शुरू हो गया है एंड वी विल गेट व्हाट, कंट्रोल्ड कंबशन. तो 40 to 45% हीट विल बी इवोल्व्ड इन दिस पर्टिकुलर स्टेज, स्टेज 3. उसके बाद जो आफ्टर बर्निंग है उसमें 10 से 15% जो आपका अनबर्न चार्ज बच गया था दैट इज नाउ गोइंग टू कंबस्ट, और 10 से 15% बचा हुआ जो हीट है वो इसमें आ जाएगा. अगर 1-2% फिर भी बच गया है तो वो तो अब जाने ही वाला है, वो आपका एग्जॉस्ट में चला जाएगा. Are you getting guys? Okay. So most of the heat we will get in this stage 2, 3 and 4. Are you getting guys? So these are the 4 stages. I think now it is clear to you what is normal combustion. ये normal है बच्चों. This is what normal combustion. ये normal है. अब नॉर्मल क्या होगा कि अगर ये यहाँ पे कंबस्ट हो जाए, इकट्ठा हो जाए, फ्यूल क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, एंड देन हेयर फ्रॉम हेयर सपोज यहाँ तक ये कंबस्ट हो रहा था, ओके, और यहाँ तक कंबस्ट हो गया, यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, रैपिड प्रेशर राइज, कुछ ऐसा, ओके, कुछ ऐसा. तो ये क्या हो जाएगा आपका नोकिंग इन सीआई इंजन. तो इसको हम क्या बोलेंगे, नोकिंग बोलेंगे बच्चों, बिकॉज प्रेशर राइज बहुत रैपिड हो जाएगा ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द चार्ज और पावर लॉस हो जाएगा, डैमेज विल बी देयर टू द इंजन, दैट इज अबनॉर्मल कंबशन और नोकिंग इन सीआई इंजन. चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिले पीरियड. ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो डिले पीरियड को इन्फ्लुएंस करते हैं? देखो, कंप्रेशन रेशियो अगर हाई होगा डीजल इंजन में, मोर इज द कंप्रेशन रेशियो, तो डिले पीरियड बच्चों घट जाएगा. हाई कंप्रेशन रेशियो पे प्रेशर टेम्परेचर विल बी हाइयर, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाएगा. हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, वेपराइजेशन भी अच्छी होगी, फिजिकल डिले भी कम हो जाएगा. तो हाई कंप्रेशन रेशियो से केमिकल डिले भी कम होता है, फिजिकल डिले भी कम होता है, ओवरऑल डिले पीरियड कम हो जाता है. दैट्स व्हाई हाई कंप्रेशन रेशियो इज गुड फॉर डीजल. अगर हाई कंप्रेशन रेशियो दैट इज गोइंग टू डिक्रीज द नोकिंग टेंडेंसी इन डीजल इंजन. बट पेट्रोल में तो क्या करता था, हाई कंप्रेशन रेशियो इंक्रीजेज द नोकिंग टेंडेंसी. ठीक है. इंजन स्पीड, देखो इंजन स्पीड से क्या फर्क पड़ता है डिले पीरियड पे. एक्चुअली हाई स्पीड पे माइक्रो सेकेंड में जो डिले पीरियड है, माइक्रो सेकेंड में अगर आप टाइम की टर्म में अगर आप मेजर कर रहे हो तो वो डिक्रीज करेगा. बट अगर मैं क्रैंक एंगल की टर्म में डिफाइन करूं तो क्रैंक एंगल की टर्म में इंजन की स्पीड बढ़ने से आपका जो वो है बढ़ जाएगा. ओके. देखो हाई स्पीड से क्या होगा, आपका जो हीट लॉस है, आपका जब इंजन है सपोज इट इज रनिंग कंप्रेशन यू आर कैरिंग आउट एट ए वेरी हाई स्पीड, आपका इंजन जो पिस्टन है बहुत हाई स्पीड पे मूव कर रहा है. तो हाई स्पीड पे मूव करने से क्या होगा बच्चों, जो हीट का लॉस है ड्यूरिंग कंप्रेशन, हीट का जो लॉस है वो कम होगा. तो कंपेटिवली जो प्रेशर टेम्परेचर हाई मिलेगा आपको, दैट विल बी मोर एज कंपेयर टू द इंजन विच इज रनिंग एट लो स्पीड. तो लो स्पीड पे चलेगा तो हीट लॉस ज़्यादा होगा, प्रेशर टेम्परेचर कम हो जाएगा. हाई स्पीड पे चलेगा तो हाई स्पीड है, यू नो गाइज एडियाबेटिक प्रोसेस आर वेरी फास्ट प्रोसेस. तो एडियाबेटिक तो बहुत फास्ट प्रोसेस होता है. अगर किसी प्रोसेस को एडियाबेटिक बनाना है तो मेक दैट प्रोसेस वेरी फास्ट, यू विल हैव ए एडियाबेटिक प्रोसेस. तो फास्ट करने से आपका हीट लॉस कम हो जाएगा, प्रेशर टेम्परेचर बढ़ जाएगा. तो टाइम की टर्म्स में तो आपका जो है डिले पीरियड वो है डिले पीरियड कम हो जाएगा. ओके. बट क्रैंक एंगल की टर्म में बढ़ जाएगा. भाई आप इंजन को हाई स्पीड पे रन कर रहे हो बच्चों, यू नीड टू इंजेक्ट मोर फ्यूल ना. तो मोर फ्यूल कैसे इंजेक्ट करोगे इन इंजन, द गवर्निंग जो फ्यूल का हम करते हैं वो फ्यूल पंप इज लिंक्ड विद द क्रैंक एंगल ओनली. तो इट इज गोइंग टू टेक द रीडिंग ऑफ द क्रैंक. तो क्रैंक एंगल ज़्यादा उसको ओपनिंग करना पड़ेगा. सो इफ यू आर रनिंग द इंजन एट हाई स्पीड तो अपने को मोर फ्यूल वी नीड टू इंजेक्ट. दैट्स वाई इन टर्म्स ऑफ क्रैंक एंगल द डिले पीरियड इज गोइंग टू इंक्रीज, बिकॉज आपको ज़्यादा फ्यूल इंजेक्ट करना पड़ेगा. ज़्यादा फ्यूल इंजेक्ट करोगे तो डिले पीरियड इज गोइंग टू इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ द क्रैंक एंगल. बट इन टर्म्स ऑफ टाइम क्रैंक एंगल आपका डिले पीरियड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. आर यू गेटिंग गाइस? तो ओवरऑल अगर आपको इंजन स्पीड का आंसर करना है, मोर इज द इंजन स्पीड, आप क्या कहोगे, डिले पीरियड विल बी मोर, नोकिंग टेंडेंसी विल बी मोर. तो पेट्रोल इंजन में तो स्पीड से नोकिंग कम हो जाता था, बट डीजल में ऐसा नहीं होगा. डीजल में अगर स्पीड ज़्यादा है मतलब ज़्यादा फ्यूल आप इंजेक्ट करोगे, ज़्यादा फ्यूल इंजेक्ट करोगे तो डिले पीरियड बढ़ जाएगा. डिले पीरियड बढ़ जाएगा तो नोकिंग टेंडेंसी भी आपका
बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। ओके चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ऑटोमाइजेशन ऑफ फ्यूल। अगर आप जो है ऑटोमाइजेशन मतलब बहुत हाई प्रेशर पे आप इंजेक्ट कर रहे हो तो अच्छी ऑटोमाइजेशन होगा, फिजिकल डिले कम हो जाएगा। बट सपोज इफ यू आर द इंजेक्टर विच यू आर यूजिंग दैट इज नॉट इंजेक्टिंग एट हाई प्रेशर, तो क्या होगा बच्चों, लो प्रेशर पे इफ यू आर इंजेक्टिंग द फ्यूल देयर विल बी हायर फिजिकल डिले, और हायर फिजिकल डिले से आपका डिले पीरियड बढ़ जाएगा, नॉकिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो दैट्स व्हाई ऑटोमाइजेशन ऑफ फ्यूल अगर गुड है, डिले पीरियड कम होगा, नॉकिंग कम होगा। इंजेक्शन टाइमिंग, मैंने बताया था अगर आप इंजेक्शन को एडवांस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एडवांस कर रहे हो, मतलब आप लो टेम्परेचर लो प्रेशर एयर के ऊपर फ्यूल को इंजेक्ट कर रहे हो, एंड ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ द फ्यूल ओवर लो टेम्परेचर लो प्रेशर एयर, डिले पीरियड आपका बढ़ जाएगा, नॉकिंग आपकी बढ़ जाएगी। इसलिए इंजेक्शन को हम थोड़ा रिटार्ड रखते हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं करते। चलिए ये पॉइंट तो बड़ा सिमिलर है किसके साथ, पेट्रोल के साथ। ओके इंजन आउटपुट, देखो इंजन का आउटपुट से क्या मतलब है, लोड, इंजन का जो लोड है वो बढ़ गया है। ओके अगर लोड बढ़ गया है तो क्या होगा बच्चों, जो इंजन का जो टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर है, आपका इंजेक्शन प्रेशर है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज। हाई लोड पे आपका इंजन का जो टेम्परेचर है और जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो डिले पीरियड क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा बच्चों। ओके डिले पीरियड क्या हो जाएगा, इट विल बी लोअर इन CI इंजन। ओके हाई टेम्परेचर हाई पे, बट इसमें भी एक पॉइंट है बच्चों, एक पॉइंट मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ, इंजन आउटपुट बढ़ने से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंजेक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ये तो एक पॉइंट है, मैं यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट आपको नोट करवा रहा हूँ। व्हाट इज दैट, लोड बढ़ेगा तो आपको फ्यूल इंजेक्शन भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे मैं इस पॉइंट पे क्या करता हूँ, दो चीज़ें बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे डिले पीरियड बढ़ भी सकता है बच्चों, बढ़ेगा घटेगा, इसलिए यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट आएगा, एंड वी नीड टू आंसर इंक्रीज ओनली। व्हाई, बिकॉज हाई लोड पे आपको ज़्यादा इंजेक्शन करना पड़ेगा, ज़्यादा इंजेक्शन करोगे तो लोड विल दैट डिले पीरियड विल इंक्रीज। ओके तो दो पॉइंट थे, एक तो ये स्पीड वाला और ये लोड वाला। तो स्पीड से भी ये वाला मिली सेकेंड्स में घट रहा था, बट क्रैंक एंगल की टर्म में ड्यू टू मोर फ्यूल इंजेक्शन दैट इज इंक्रीजिंग, तो नॉकिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है स्पीड बढ़ाने से। ऐसे ही लोड बढ़ने से भी डिले पीरियड बढ़ेगा, बिकॉज मोर फ्यूल वी नीड टू इंजेक्ट, ज़्यादा लोड पे ज़्यादा फ्यूल इंजेक्ट करना पड़ेगा, डिले पीरियड बढ़ जाएगा। ओके क्वालिटी ऑफ फ्यूल, गुड इज अ क्वालिटी गाइस, अगर अच्छा सीटेन नंबर है तो डिले पीरियड कम होगा, नॉकिंग कम हो जाएगी। इनटेक टेम्परेचर प्रेशर हाइयर, अगर इनटेक टेम्परेचर प्रेशर हाई है तो डिले पीरियड कम होगा और नॉकिंग टेंडेंसी भी कम होगी। तो बच्चों कंक्लूजन क्या है, अगर डिले पीरियड कम होता है तो नॉकिंग कम होता है, डिले पीरियड ज़्यादा होता है नॉकिंग ज़्यादा होता है। तो आपको सोचना क्या है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो डिले पीरियड को अफेक्ट करते हैं। तो ये एक समरी है दैट आई पिक्ड फ्रॉम ए बुक। सीटेन नंबर ऑफ फ्यूल, अगर सीटेन नंबर अच्छा है तो वो डिले पीरियड को रिड्यूस करता है, नॉकिंग को भी क्या करता है बच्चों, रिड्यूस करता है। बिकॉज अगर सीटेन नंबर अच्छा है तो उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कम होगा, वो एक्यूमुलेट नहीं होगा। ओके इंजेक्शन प्रेशर अगर रिड्यूस कर दिया आपने, अगर इंजेक्शन प्रेशर को रिड्यूस किया तो डिले पीरियड क्या हो जाएगा, फिजिकल डिले ड्यू टू ग्रेटर सरफेस वॉल्यूम रेशो रिड्यूसेस फिजिकल डिले। इंजेक्शन प्रेशर, अच्छा इंजेक्शन प्रेशर हाई, यहाँ इंजेक्शन प्रेशर हाई लिख देता हूँ बच्चों, हाई इंजेक्शन प्रेशर, अगर आपने हाई इंजेक्शन प्रेशर किया, हाई इंजेक्शन प्रेशर हाई सीटेन नंबर, तो यहाँ मैं हाई की बात कर रहा हूँ, हाई सीटेन नंबर रिड्यूसेस द डिले पीरियड, नॉकिंग भी घट जाएगा बिकॉज सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कम हो रहा है। हाई इंजेक्शन प्रेशर डिले पीरियड कम हो जाएगा बिकॉज हाई इंजेक्शन प्रेशर पे आपका फिजिकल डिले कम हो जाएगा। इंजेक्शन टाइमिंग एडवांस, इंजेक्शन टाइमिंग आपने एडवांस कर दिया है तो उससे डिले पीरियड क्या हो जाता है बच्चों, इंजेक्शन टाइमिंग आपने एडवांस कर दिया, रिड्यूस्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर व्हेन द इंजेक्शन बिगिंस। देखो अभी इसमें क्या है, इंजेक्शन टाइमिंग एडवांस, आप इसको आप करेक्ट करना, इंजेक्शन टाइमिंग एडवांस, अगर आप बहुत ज़्यादा एडवांस करते हो ओके तो आपका डिले पीरियड आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ेगा बच्चों, ये कई बार ऐसा होता है, तो इट इज गोइंग टू इंक्रीज। हमने जिस हिसाब से इसको समझा इंजेक्शन टाइमिंग को, जब हम क्या करते हैं इंजेक्शन टाइमिंग एडवांस, इंजेक्शन को हमने बहुत ज़्यादा एडवांस कर दिया, मतलब इंजेक्शन को हम पहले करें, वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट पॉइंट इन दैट मैनर, इंजेक्शन हमने बहुत पहले कर दिया तो क्या हो जाएगा, डिले पीरियड बढ़ जाएगा, नॉकिंग बढ़ेगा। तो इंजेक्शन को हम लिमिट करते हैं बच्चों, आप देख पा रहे हो अगर इंजेक्शन एडवांस करने से नॉकिंग कम होता है तो व्हाई वी आर गोइंग टू लिमिट द इंजेक्शन, फिर तो हम बहुत ज़्यादा इंजेक्शन एडवांस कर देते हैं ना बच्चों, दैट इज नॉट राइट।
तो इंजेक्शन एडवांस करने से डिले पीरियड बढ़ जाता है बच्चों, बहुत ज़्यादा एडवांस करने से। ओके, थोड़ा बहुत एडवांस तो करते हैं सो दैट वी विल गेट पीक प्रेशर क्लोज टू टीडीसी, पावर आउटपुट बढ़ जाए, बट बहुत ज़्यादा एडवांस करने से डिले पीरियड बढ़ता है। ओके, तो इंजेक्शन एडवांस से डिले पीरियड बढ़ेगा, नोकिंग भी बढ़ेगी। ये पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। कंप्रेशन रेशो से, हाई कंप्रेशन रेशो से क्या होता है, डिले पीरियड घटता है, दिस इज वेरी राइट। इनटेक टेम्परेचर से, हाई इनटेक टेम्परेचर से भी डिले पीरियड घटता है। हाई जैकेट वाटर टेम्परेचर, अगर जैकेट वाटर टेम्परेचर क्या है, हाई है, तो मतलब डिले पीरियड कम होगा। अगर जैकेट वाटर टेम्परेचर क्या है, अगर आपका जैकेट वाटर है वो इंजन का जो सरफेस टेम्परेचर है वो हाई है, तो जब फ्यूल पार्टिकल व्हेन यू आर गोइंग टू इंजेक्ट, इट इज गोइंग टू टेक हीट फ्रॉम द सरफेस आल्सो एंड इट इज गोइंग टू वेपराइज वेरी इजीली इनटू द एयर। बट अगर आपका सिलेंडर का टेम्परेचर कम है तो क्या होगा, मान लीजिए कोल्ड स्टार्टिंग आप कर रहे हो, तो क्या होगा, इट विल नॉट बी एबल टू मिक्स विद द एयर, तो डिले पीरियड आपका बढ़ जाएगा। तो जैकेट वाटर अगर ज़्यादा है तो रिड्यूस करेगा। फ्यूल टेम्परेचर भी अगर हाई है, हाई फ्यूल टेम्परेचर है, तो उससे भी आपका डिले पीरियड कम हो जाएगा बच्चों। इनटेक प्रेशर अगर हाई है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू रिड्यूस द डिले पीरियड। स्पीड अगर आपका हाई है तो उससे तो डिले पीरियड आपका बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ क्रैंक एंगल, रिड्यूसेस इन टर्म्स ऑफ माइक्रो सेकेंड। ओके, तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, रिड्यूसेस हीट लॉस। लोड अगर बढ़ता है, ओके, लोड अगर बढ़ता है तो जो आपका डिले पीरियड है, देखो आपको दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों से आपको समझना है। लोड बढ़ेगा तो प्रेशर टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके, प्रेशर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस टर्म्स में हम क्या बोल सकते हैं कि डिले पीरियड कम हो जाएगा। ओके, स्पीड का तो हम क्लियर कर ही चुके हैं। लोड से क्या होगा, अगर लोड बढ़ने से मोर फ्यूल वी आर गोइंग टू इंजेक्ट, तो डिले पीरियड बढ़ भी सकता है। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने डिक्रीज लिखा तो इसको हम मान सकते हैं, वी कैन गो विद दैट ऑल्सो। लोड बढ़ेगा तो टेम्परेचर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर प्रेशर बढ़ेगा ऑपरेटिंग, तो डिले पीरियड बढ़ जाएगा, डिले पीरियड घट जाएगा। इंजन साइज, देखो डीजल पेट्रोल इंजन में अगर साइज बड़ा होता है तो क्या होता है, फ्लेम स्पीड कम हो जाता है, नोकिंग टेंडेंसी बढ़ जाता है। बट डीजल इंजन में अगर इंजन का साइज बड़ा है तो क्या होगा बच्चों, इंजन साइज बड़ा होने से एक्यूमुलेशन कम होगा। तो इंजन साइज जितना बड़ा है दैट इज गुड फॉर डीजल इंजन। तो इंजन साइज अगर बड़ा है दैट इज गोइंग टू डिक्रीज इन टर्म्स ऑफ व्हाट, जो आपका डिले पीरियड है वो डिक्रीज हो जाएगा, और डिले पीरियड डिक्रीज हो जाएगा तो नोकिंग भी कम होगा, बिकॉज लार्ज इंजन ऑपरेट्स नॉर्मली एट लो स्पीड। ओके, तो आपको समझना क्या है, लार्ज इंजन जितना होगा तो एक्यूमुलेशन कम होगा, डिले पीरियड विल डिक्रीज, और नोकिंग आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लास्ट बात करते हैं टाइप ऑफ कंबशन चेंबर। नॉर्मली इट इज ऑब्जर्व कि अगर आप प्री कंबशन चेंबर यूज करते हैं, प्री कंबशन चेंबर में हम क्या करते हैं, एयर को प्री हीट करते हैं बच्चों। सो इफ यू आर प्री हीटिंग द एयर एंड दैट प्री हीटेड एयर इफ यू आर अलोइंग इनटू द कंबशन चेंबर, तो उससे आपका जो डिले पीरियड है वो कम हो जाता है। ओके, तो दैट इज गुड, इससे डिले पीरियड कम होगा, नोकिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे बच्चों जो हमने पढ़े रिलेटेड टू नोकिंग इन सीआई इंजन। नेक्स्ट मूव करते हैं कि नोकिंग जो है सीआई में और एसआई में डिफरेंस क्या है बच्चों। देखो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, इन डीजल इंजन नोकिंग टेक्स प्लेस एट द स्टार्ट ऑफ द कंबशन, बिकॉज जो चार्ज आप एक्यूमुलेट करवा रहे हो, यू आर इंजेक्टिंग द फ्यूल, इट इज नॉट कंबस्टिंग, एंड देन आफ्टर सम टाइम इट इज गोइंग टू कंबस्ट। तो CI इंजन में combustion takes place at the beginning of the combustion. At the beginning of the combustion only knocking takes place in CI engine. Whereas in SI engine knocking किसका होता है बच्चों, ऑटो इग्निशन ऑफ द एंड चार्ज। तो एंड चार्ज मतलब कंबशन जब एंड होने वाला है तब नोकिंग होगा, किसमें, SI इंजन में। सो SI इंजन में knocking takes place of the what, the end charge auto ignites, that is knocking। तो knocking SI इंजन में तो यहाँ पे होता है बच्चों, कुछ यहाँ पे, बट डीजल इंजन में कहाँ पे होता है, इन द बिगनिंग। दैट इज द फर्स्ट मेजर डिफरेंस बिटवीन द नोकिंग इन SI एंड CI इंजन। दूसरा डिफरेंस क्या है बच्चों, द ऑटो इग्निशन इज नोकिंग इन SI इंजन, वेयर एज auto ignition is normal combustion in CI engine. If the charge is not auto igniting, it is accumulating, that is abnormal combustion in CI engine. That is another second important point. तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि पेट्रोल इंजन में कुछ ना कुछ प्री इग्निशन होता है, प्री इग्निशन से नोकिंग बढ़ जाता है, बट डीजल इंजन में प्री इग्निशन कुछ नहीं होता। जो प्री इग्निशन क्या मतलब, आप क्या कर रहे हो, यू आर ओनली इनटेकिंग द एयर, ओनली एयर इज एंटरिंग इनटू द कंप्रेशन स्ट्रोक। तो कंप्रेशन में ओनली एयर एंटर कर रहा है, तो प्री इग्निशन तो कुछ होगा ही नहीं, किसमें, डीजल इंजन में। प्री इग्निशन का मतलब क्या है कि आप कंप्रेस कर रहे हो और चार्ज इज ऑटो इग्नाइटिंग विदाउट गिविंग द स्पार्क, दैट इज प्री इग्निशन। तो यहाँ पे प्री इग्निशन हो ही नहीं सकता, बिकॉज ओनली एयर वी आर टेकिंग इन द सक्शन स्ट्रोक, और एयर को ही हम कंप्रेस कर रहे हैं, तो प्री इग्निशन नहीं होगा CI इंजन में। ओके, ये पॉइंट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। एक पॉइंट और बताता हूँ कि जो नोकिंग है वो SI इंजन में ज़्यादा सीवियर होता है बच्चों, बिकॉज
SI इंजन में जो एंड चार्ज है, एंड चार्ज डजंट मीन कि थोड़ा सा चार्ज है बच्चों, अगर एंड चार्ज आपका 20-30% भी बच गया है, दैट इज गोइंग टू काज वेरी ह्यूज सीवियर प्रेशर राइज. सो नॉकिंग की वजह से जो प्रेशर राइज होता है SI इंजन में, दैट इज मच हायर एज कम्पेयर टू प्रेशर राइज इन CI इंजन. CI इंजन में तो हेट्रोजीनियस कंबशन होता है. अब नॉर्मल जो है क्या बोलते हैं, ऑटो इग्निशन होता ही है. ऑटो इग्निशन इज नॉर्मल कंबशन इन CI इंजन. तो CI में नॉकिंग बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होती. Knocking is very much severe in SI engine. That's why the knocking in SI engine is also known as detonation. SI engine की जो knocking है उसको detonation बोल देते हैं कि कुछ चार्ज है वो detonate कर गया है. Are you getting? So detonation जो word है separately we use for what knocking in SI engine, because knocking is very much severe in SI engine. And SI engine it is very easy to identify. It is very easy to check कि knocking हो रहा है या नहीं हो रहा है. Whereas it is very difficult to observe the knocking in CI engine, because CI engine में तो abnormal जो CI engine में तो क्या है, auto ignition is normal combustion. Okay, and the sound vibrations are already much higher in the diesel engine, so it is very difficult to segregate knocking या normal combustion in the CI engine. But petrol में आप बड़ा easily segregate कर पाओगे normal को और knocking को, because knocking जब होगा बहुत high pressure rise होगा and you will be easily able to observe that. तो knocking को identify करना SI में easy है, CI में डिफिकल्ट है. नॉकिंग सीवियर भी SI में होता है, CI में सीवियर नहीं होता. नॉकिंग SI में एट द एंड ऑफ कंबशन होता है, CI में एट द बिगिनिंग ऑफ कंबशन होता है. SI में प्री इग्निशन हो सकता है जो इनिशिएट करता है कंबशन को, जो कंबशन को बढ़ा सकता है. वेयरएज इन CI इंजन देयर इज नो प्री इग्निशन. इन SI इंजन ऑटो इग्निशन ऑफ द चार्ज इज नॉकिंग, whereas in CI engine if it is auto igniting that is normal combustion, if it is not auto igniting that is abnormal combustion in the CI engine. Okay, तो नॉकिंग क्या होती है बच्चों, रैपिड प्रेशर राइज होता है विद साउंड ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ कंबशन. रीजन क्या है, प्रोलॉन्ग्ड या इंक्रीज्ड डिले पीरियड. इंक्रीज्ड डिले पीरियड की वजह से लार्ज चार्ज इज अवेलेबल फॉर द कंबशन, और वो लार्ज चार्ज क्या करेगा, रैपिड कंबस्ट करेगा, तो आपको बहुत रैपिड प्रेशर राइज मिलेगा. तो इसका रिजल्ट क्या होगा, रफ वर्किंग होगी, नॉइसी कंबशन होगा, और आप डैमेज हो सकता है, पावर लॉस तो होगा ही होगा. सो दिस इज व्हाट नॉकिंग इन CI इंजन. ओके, तो बच्चों आई होप these particular points are very much clear to you now. तो लास्ट जो थ्योरी पार्ट है उसके बाद वी आर गोइंग टू मूव टू द क्वेश्चन. मेथड्स टू कंट्रोल नॉकिंग इन डीजल इंजन. कैसे आप डीजल में नॉकिंग को कम कर सकते हो, कैसे कम कर सकते हो, जो भी फैक्टर्स हैं विच आर गोइंग टू रिड्यूस द डिले पीरियड. जो भी फैक्टर डिले पीरियड को कम कर देंगे मतलब नॉकिंग को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, बिकॉज मोर इज द डिले पीरियड मोर इज द नॉकिंग. तो डिले पीरियड को कम कैसे कर सकते हो, इफ यू आर इन टेकिंग हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एयर. हाई टेम्परेचर प्रेशर पे अगर आप एयर को कर रहे हो, मतलब अगर आप सुपर चार्जिंग करते हो, टर्बो चार्जिंग करते हो, टर्बो चार्जिंग या सुपर चार्जिंग अगर आप करते हो, दैट इज गुड फॉर डीजल गाइज. सुपर चार्जिंग, टर्बो चार्जिंग इज नॉट गुड फॉर पेट्रोल, बिकॉज पेट्रोल में अगर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर करोगे दैट विल रिजल्ट इन द ऑटो इग्निशन. ओके, तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर जैसे भी बढ़ा सकते हो. प्री चैम्बर में प्री हीट कर दो. प्री हीट आप पेट्रोल में नहीं कर सकते, पेट्रोल में प्री हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, बिकॉज यू आर हैविंग एयर फ्यूल मिक्सचर, तो वो ऑटो इग्नाइट कर जाएगा. बट डीजल में बिकॉज वी आर ओनली सकिंग एयर ओनली इन द सक्शन स्ट्रोक, सो वी कैन प्री हीट दैट. तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर टर्बो चार्जिंग से बढ़ाओ, प्री हीटिंग से बढ़ाओ. अगर बढ़ाओगे डिले पीरियड कम हो जाएगा, नॉकिंग कम हो जाएगा. हाई कंप्रेशन रेशो ज़्यादा होगा तो प्रेशर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, डिले पीरियड कम हो जाएगा. हाई सिटेन नंबर होगा, हाई लेसर विल बी द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर. हाई सिटेन नंबर, लेसर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, लेसर केमिकल डिले, बहुत जल्दी वो कंबस्ट कर जाएगा, एक्यूमुलेशन नहीं होगा, नॉकिंग नहीं होगी. गुड swirl मूवमेंट, जितना अच्छा swirl मूवमेंट होगा उतना अच्छे से यू विल गेट द एयर फ्यूल मिक्सचर एंड वेपराइजेशन विल बी गुड एंड फ्यूल विल बी इजीली गेट सफिशिएंट एयर टू कंबस्ट टू स्टार्ट द कंबशन रिएक्शन. ओके, तो गुड swirl होगा तो कंबशन चैम्बर डिजाइन पे भी डिपेंड करेगा, जिससे डिले पीरियड आपका कम हो जाएगा. हाई इंजेक्शन प्रेशर, जितना हाई इंजेक्शन प्रेशर होगा उतना आपका फिजिकल डिले कम हो जाएगा, डिले पीरियड कम हो जाएगा, नॉकिंग कम हो जाएगी. चलिए बच्चों, तो ये कुछ पॉइंट्स थे और कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स कैरेक्टरिस्टिक वी स्टडीड अबाउट नॉकिंग इन CI इंजन. नाउ वी आर गोइंग टू सोल्व सम क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. The knock is used for an identical phenomena in spark and compression ignition engine. तो क्या फिनोमिना सेम होता है बच्चों, आइडेंटिकल फिनोमिना? नहीं, द फिनोमिना इज नॉट आइडेंटिकल बच्चों. फिनोमिना आइडेंटिकल नहीं होता, ये पॉइंट सही नहीं है. नॉक इज अ टर्म एसोसिएटेड विद ए फिनोमिना टेकिंग प्लेस इन द अर्ली पार्ट ऑफ कंबशन इन स्पार्क. नहीं, स्पार्क में तो बाद में होता है, SI में CI में अर्ली स्टेज में होता है. This is also not right. Knock is a term associated with the phenomena taking place in the later part of combustion.
इन SI इंजन एंड अर्ली पार्ट ऑफ कंबशन इन CI इंजन, तो दिस इज बिल्कुल वेरी राइट। तो C क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर वुड इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉकिंग CI इंजन। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो नॉक को बढ़ाते हैं CI इंजन में? लॉन्ग इग्निशन डिले फ्यूल, बिल्कुल, जितना डिले पीरियड ज़्यादा होगा तो नॉकिंग ज़्यादा होगी। लो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, नहीं, अरे सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर अगर कम है तो डिले पीरियड तो कम होगा, तो नॉकिंग कम हो जाएगी। दिस इज नॉट राइट, ये बढ़ाएगा नहीं, दिस इज गोइंग टू डिक्रीज द नॉकिंग। लो वोलेटिलिटी ऑफ द फ्यूल, बिकॉज अगर लो वोलेटिलिटी है तो डिले पीरियड बढ़ जाएगा ना बच्चों, डिले पीरियड बढ़ जाएगा, नॉकिंग बढ़ जाएगा, तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज द नॉकिंग, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज द नॉकिंग। 1 and 3, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, असर्शन रीजन क्वेश्चन है। ए वेरी हाई कंप्रेशन रेशियो इज फेवर्ड फॉर CI इंजन, सही है, इन ऑर्डर टू अटेन हाई मैकेनिकल एफिशिएंसी विदाउट नॉकिंग, बिल्कुल सही है, असर्शन ठीक लग रहा है। द डिले पीरियड इन CI इंजन अफेक्ट्स रेट ऑफ प्रेशराइज एंड हेंस नॉकिंग, ये पॉइंट भी ठीक है, देखो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट क्या इन दोनों का कोई रिलेशन है बच्चों? पॉइंट तो ठीक है ना, CI डिले पीरियड जो है CI इंजन में अफेक्ट करता है प्रेशर राइज को, बिल्कुल, अगर डिले पीरियड बहुत ज़्यादा है तो नॉकिंग हो जाएगी, बहुत रैपिड प्रेशर राइज हो जाएगा, ओके, तो बिल्कुल अफेक्ट करता है, नॉकिंग को भी अफेक्ट करता है। डिले पीरियड ही मेन क्राइटेरिया जो क्या करता है, नॉकिंग को अफेक्ट करता है, तो बोथ आर इंडिविजुअली राइट, बट देयर इज नो सच रिलेशनशिप बिटवीन देम, रीजन इज नॉट जस्टिफाइड फॉर द असर्शन, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों। Hypothetical pressure diagram for compression ignition engine is shown in the given figure. The diesel knock is generated during the period. देखो डीजल नोक कहाँ होता है, अर्ली स्टेज ऑफ कंबशन। डीजल में CI में नोक कहाँ पे होता है, अर्ली स्टेज ऑफ कंबशन। A to B तो फर्स्ट स्टेज है ना बच्चों, डिले पीरियड, वहाँ पे तो कंबशन होता ही नहीं, तो कंबशन कहाँ पे होगा, यहाँ पे अर्ली स्टेज ऑफ कंबशन में। तो जो B to C स्टेज है, B to C जो स्टेज है अनकंट्रोल्ड कंबशन वाली, वहाँ पे क्या होगा, आपका कंबशन जो है नोकिंग है वो हो जाएगा किसमें, CI इंजन में, तो B to C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, असर्शन रीजन क्वेश्चन। इन CI इंजन इज बेसिकली मोर सुटेबल फॉर सुपर चार्जिंग देन SI, बिल्कुल सही कह रहा है, बिकॉज सुपर चार्जिंग करोगे तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर एयर इज गोइंग टू एंटर, डिले पीरियड विल बी लेस, नॉकिंग टेंडेंसी विल बी लेस, दिस इज राइट। इन CI इंजन सुपर चार्जिंग टेंड्स टू प्रिवेंट डीजल नॉकिंग, देखो दोनों सही हैं, एंड नाउ दिस इज हैविंग समवट लिंक विद दिस, सो नाउ ऑप्शन विल बी ए, बोथ आर इंडिविजुअल राइट एंड रीजन इज जस्टिफाइड फॉर द असर्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों, द नॉकिंग टेंडेंसी इन कंप्रेशन इग्निशन इंजन इंक्रीजेस, कैसे बढ़ जाती है नॉकिंग टेंडेंसी, इंक्रीज ऑफ कूलेंट वाटर टेम्परेचर, कूलेंट वाटर का टेम्परेचर अगर आपने बढ़ाया तो क्या नॉकिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, नहीं, नॉकिंग टेंडेंसी इन द कंप्रेशन इग्निशन इंजन इंक्रीजेस, नहीं, इससे तो नहीं बढ़ेगी। इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर, नहीं, इससे तो घटेगी, इससे भी घटेगी, इससे भी बढ़ेगी, बिकॉज बोथ आर गोइंग टू डिक्रीज द डिले पीरियड। डिक्रीज ऑफ कंप्रेशन रेशियो, बिल्कुल सही, अगर आपने कंप्रेशन रेशियो कम कर दिया दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द नॉकिंग टेंडेंसी, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस, बिकॉज ही इज आस्किंग यू कि किससे नॉकिंग टेंडेंसी बढ़ जाता है बच्चों, बढ़ेगा किससे, डिक्रीज इन कंप्रेशन रेशियो से। नेक्स्ट मूव करते हैं, द डिले पीरियड इन CI इंजन डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, किस पे डिपेंड करता है डिले पीरियड, टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द सिलेंडर एट द टाइम ऑफ इंजेक्शन, बिल्कुल सही है, इस पर डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ द फ्लूइड, बिल्कुल फ्लूइड के नेचर पे भी डिपेंड करेगा कि वो वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है। रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द फ्यूल इंजेक्शन एंड एयर टर्बुलेंस, बिल्कुल इस पे भी डिपेंड करेगा, तो मतलब ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा बच्चों। सो दीज ऑल आर इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गाइस। नेक्स्ट बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग विच इज करेक्ट, डीजल नॉक कैन बी रिड्यूस्ड बाय, डीजल नॉक को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो, इंक्रीजिंग द कंप्रेशन रेशियो, बिल्कुल सही। स्पीड से क्या कर सकते हैं, नहीं, स्पीड से नॉकिंग जो है डिले पीरियड क्या होता है, मैंने बताया था एंगल में बढ़ेगा, तो स्पीड से नॉकिंग डिक्रीज नहीं होगी, पेट्रोल में होती है बट डीजल में पेट्रोल स्पीड से नॉकिंग टेंडेंसी इज गोइंग टू इंक्रीज ओनली, डिले पीरियड बढ़ जाएगा, सो दिस इज नॉट राइट। इंक्रीजिंग द इंजेक्शन रिटार्ड, देखो रिटार्ड करने से भी नॉकिंग कम होता है बच्चों, मैंने कहा था बहुत ज़्यादा एडवांस करने से क्या होता है, एडवांस करने से नॉकिंग बढ़ता है, एडवांस करने से एक्यूमुलेशन बढ़ेगा, लो टेम्परेचर लो प्रेशर एयर पे व्हेन यू आर इंजेक्टिंग द एयर दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द डिले पीरियड, और आपका नॉकिंग बढ़ जाएगा, एक्यूमुलेशन की वजह से नॉकिंग बढ़ जाएगा। रिटार्ड करने से नॉकिंग कम होता है। डिक्रीज द एयर इनलेट टेम्परेचर, अरे डिक्रीज से थोड़ा ना घटेगा, डिक्रीज से तो नॉकिंग बढ़ जाएगा, अगर एयर टेम्परेचर बढ़ाओगे दैट इज गोइंग टू डिक्रीज द नॉकिंग। आपसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर गोइंग टू रिड्यूस द नॉकिंग, तो रिड्यूस तो 1 और 3 ही कर रहे हैं बच्चों, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर।
फाइन, चलिए. Okay, so this is next question. Statement 1, in CI engine, increase of load decreases the knocking tendency. Okay, increase of load increase the temperature of mixture and thereby increases the delay period. So guys, what we have studied about load, although that point is slightly contradictory, because load से क्या होता है, load is more is the cycle pressure, more is the temperature, that is going to cause what kind of knocking. Okay, high pressure से diesel में क्या होगा, high pressure high temperature पे the delay period is going to decrease. So in that manner we can say कि knocking is going to decrease, but at high load the more injection will be there, more fuel we need to inject. So that point is a reverse of that. So where we can make some kind of balance, कहाँ पे हम balance कर सकते हैं, तो CI इंजन में increase of load decreasing the knocking tendency. तो लोड बढ़ने से क्योंकि प्रेशर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वी कैन गो विद दैट, हम ये कर सकते हैं. देन दिस स्टेटमेंट वी कैन एज्यूम इट राइट, इसको हम सही मान सकते हैं, दिस स्टेटमेंट इज राइट. हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर से डिले पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो स्टेटमेंट 1 इज राइट. इंक्रीज ऑफ लोड इंक्रीज द टेम्परेचर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, सही है. देयर बाय इंक्रीजेस द डिले एंगल, नहीं, डिले को तो कम करता है, तो दिस इज नॉट राइट. तो स्टेटमेंट 1 ठीक है, सेकंड रॉन्ग है, फर्स्ट रीजन गलत है, तो मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर गाइस. नेक्स्ट मूव करते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग मेजर्स, द मेजर्स नेसेसरी टू रिड्यूस द नॉकिंग टेंडेंसी इन सीआई इंजन. कैसे हम सीआई में नॉकिंग टेंडेंसी को कम कर सकते हैं बच्चों. इंक्रीज द कंप्रेशन रेशियो, बिल्कुल सही. इंक्रीज द इनटेक एयर टेम्परेचर, बिल्कुल सही. इंक्रीज द लेंथ टू डायमीटर, लार्जर साइज होगा, एक्यूमुलेशन कम होगा, डिले पीरियड कम होगा, नॉकिंग कम होगी, तो लार्जर साइज इज ऑल्सो फाइन. इंक्रीज द इंजन स्पीड, नो दिस इज नॉट राइट. स्पीड ज़्यादा से डिले पीरियड बढ़ता है, नॉकिंग बढ़ेगा. सो 1 2 3 आर राइट, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा बच्चों. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर डीजल नॉक. डीजल नॉक के लिए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है. लॉन्गर इग्निशन डिले पीरियड इंक्रीजेस नॉकिंग टेंडेंसी इन डीजल, बिल्कुल सही है. डीजल नॉक अकर नियर द एंड ऑफ कंबशन, नहीं, ये तो कंबशन के स्टार्ट पे होता है बच्चों, दिस इज नॉट राइट. द रेट ऑफ प्रेशर राइज इन डीजल नॉक इज लोअर देन द डेटोनेशन इन स्पार्क इग्निशन इंजन, दिस इज ऑल्सो राइट. तो 1 and 3 आर राइट, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर. ओके, देखो इस एंटायर उसमें ओनली वन पॉइंट है जो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, जहाँ पे आपको बैलेंस करना पड़ेगा. व्हाट इज दैट पॉइंट, बिकॉज एज अ टीचर आई नीड टू टेल यू वो द कंडीशंस. हाई लोड पे प्रेशर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जैसा कि बढ़ता है, हमने पता है हाई इंजेक्शन प्रेशर बढ़ जाता है, साइकिल प्रेशर बढ़ जाता है, तो पेट्रोल में तो नॉकिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है. ओके, हाई स्पीड की वजह से पेट्रोल में नॉकिंग टेंडेंसी कम होता है, बिकॉज फ्लेम स्पीड बढ़ जाता है. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई स्पीड पे ज़्यादा इंजेक्शन करना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे तो एयर फ्यूल मिक्सचर आ चुका है. बट बच्चों ऑलरेडी पेट्रोल इंजन में वी टेक द एयर फ्यूल मिक्सचर. ओके, नाउ इन डीजल इंजन स्पीड बढ़ने से डिले पीरियड बढ़ जाता है, नॉकिंग टेंडेंसी भी बढ़ जाता है. बट लोड बढ़ने से क्योंकि प्रेशर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इट इज़ बेटर टू गो विद दैट कि नॉकिंग टेंडेंसी आपका कम हो जाएगा. बट ऑल्दो एट हाई पावर हाई लोड मोर फ्यूल वी नीड टू इंजेक्ट, तो उसकी वजह से डिले पीरियड बढ़ भी सकता है. दैट पॉइंट ऑल्सो आई मैंशन. बट येस, इफ यू विल मेक ए कॉम्प्रोमाइज बिटवीन दैट, दोनों पे ज़्यादा इफेक्ट किसका पड़ेगा. सो इट इज़ गुड टू गो विद व्हाट, लोड बढ़ेगा तो प्रेशर टेम्परेचर बढ़ेगा, नॉकिंग टेंडेंसी डिले पीरियड कम हो जाएगा, नॉकिंग टेंडेंसी कम हो जाएगा. ओके, सो दैट पॉइंट इज ऑल्सो व्हाट, दिस इज व्हाट, जिससे क्या है, अपोजिट है, अपोजिट टू व्हाट, पेट्रोल इंजन. तो बहुत सारे पॉइंट्स है, जो कंप्रेशन रेशियो है, प्रेशर टेम्परेचर है, सुपर चार्जिंग है, इनटेक टेम्परेचर, सिलेंडर टेम्परेचर, दिस ऑल आर जस्ट रिवर्स ऑफ व्हाट, नॉकिंग इन पेट्रोल इंजन. तो जितने भी फैक्टर्स हैं जो पेट्रोल में नॉकिंग को बढ़ाते हैं, दोज आर गोइंग टू डिक्रीज द नॉकिंग इन व्हाट, डीजल इंजन. तो ये भी हमने समझा. आई होप these all questions and theory part is clear to you related to this. Further, you all are free to shoot your query in the comment section, and I will wait for your queries responses. Thank you. Keep preparing. Good luck. Again we will meet and we will discuss some another topic, either from IC engine or from any other subject. Good luck. Thank you. Good. Keep preparing.